ಮಂಡ್ಯ ವೆಂಕಟರಾಮೇಗೌಡ ಸ್ಟಾರ್ ಚಂದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೂರಲ್ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್. ಹಾಸನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್. then Kerala, Kasargod, Rajmohan Unnital, Kannur, K. Suthagaran, Vadagara, Shafi Parambil, Wayanad, former Congress President Sri Rahul Gandhi, Kozhikode, Sri M. K. Raghavan, Palakkad, Sri V. K. Srikantan, Alathur, Mrs. Ramya Haridas, Miss Ramya Haridas, Thrissur, K. Muralidharan, Chalakudi, Binni Bahanan, Ernakulam, Haibi Eden, Idukki, Dean Kuriakose, Alapura, Sri K.C. Venugopal, Mavelikara, Kodikundal Suresh, Pathanamthitta, Anto Anthony, Attingal, Adur Prakash, Thiruvananthapuram, Dr. Shashi Tharoor, Lakshadweep, Muhammad Hamdullah Said, Shillong, Meghalaya, Vincent H. Pala, Meghalaya Tora ST, Saleng A. Sangma, Nagaland S. Supong Meran Jamir, Sikkim Gopal Chetri, Telangana Sahirabad Suresh Kumar Shatkar, Telangana Nalgonda Raghuveer Kundru, Telangana Mahbub Nagar Chella Vamshachandra Reddy, Telangana Mahbub ST Belram Naik Porika, Tripura West, Ashish Kumar Sahe. These are the 39 names. You can give Hindi. फीडबैक देने के लिए आपका अभी आपके सामने केसी वेणुगोपाल जी ने 39 लोगों की कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा करी है। जैसे इन्होंने कहा, मैं दोहराना चाहता हूं कि 39 में से 14 जनरल हैं और 15 जनरल हैं और 24 इसके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज हैं। और इस लिस्ट के अंदर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, सीडब्ल्यूसी के पूर्व हमारे सदस्य ताम्रध्वज साहू जी भी हैं, केसी वेणुगोपाल जी भी हैं। तो ये लिस्ट जो है एक मिश्रण है अनुभवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, युवाओं की, संगठन के अंदर जो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से निकल करके आए हैं उन लोगों की और जमीन से जुड़े हुए नेताओं की। और हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की गारंटी की घोषणा लोगों के पसंद के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स सक्षम हैं कि इन गारंटीज को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में आगे पूर्ण करें। अभी 3 न्याय की मुख्यतः बात करी है, किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय और युवा न्याय। युवा न्याय को 5 अलग अलग वर्गों के अंदर भरोसे के तौर के ऊपर
कहा गया है भर्ती का भरोसा कि 30 लाख नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हम लोग करेंगे, देंगे। एक पब्लिश्ड जॉब कैलेंडर के अनुसार एक कैलेंडर बनाया जाएगा और उसी के आधार के ऊपर 30 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां हमारी सरकार में आते ही हम लोग देंगे। पहली नौकरी पक्की, अप्रेंटिसशिप के लिए एक कानून मनरेगा के तौर के ऊपर बनाया जाएगा। इस बात का भी भरोसा कांग्रेस पार्टी देती है। पेपर लीक से मुक्ति, इस बात का भी भरोसा कांग्रेस पार्टी देती है। गिग इकोनॉमी को सामाजिक सुरक्षा दी जाए, जो कि आजकल एकदम से नहीं है, नहीं के बराबर है। कानूनन इनको सामाजिक सुरक्षा दी जाए, इस चीज की भी गारंटी। और युवा रोशनी के लिए कांग्रेस 5,000 करोड़ का कॉर्पस बनाएगी ताकि पूरे देश भर में युवाओं का देखभाल किया जा सके। तो मैं समझता हूं कि ये पहली लिस्ट अच्छी लिस्ट है। आप सब लोगों को शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और महिला दिवस के उपलक्ष्य में भी बहुत बहुत बधाई। Now, this is the list decided by yesterday CEC under the presidency of Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji. We are discussed the seats of the states Kerala, Karnataka, Telangana, Chhattisgarh and Delhi and Lakshadweep yesterday. Next CEC meeting is on 11th. Whenever the next seat is going to be decided, we will let you know the names of the candidates. That's what I'm telling. Wait for the list. Because of no, that I already answered all that questions. Sitting MPs have been given tickets again. So is the Congress focusing on loyalty factor also? Because in BJP, many sitting MPs' tickets were cut. I don't know why BJP sitting MP's ticket been cut. That is their business. Our position is very clear. We are going on a clear basis of winnability and the loyalty. ये लोग अभी थोड़ा सा बाहर है, तो क्या सीन हो सकता है यहाँ पे? इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या है इन आसाम? We are trying maximum possible way to go with India Alliance everywhere. But still there are little bit issues like West Bengal, somewhere in Assam like situation is there. We are trying to sort it out, that issue also. Congress party is very clear. We are here for reducing the BJP seats in a maximum level. We are ready to sacrifice anything for that, reducing the BJP seats. But we are expecting the same level of cooperation with the other partners also. In some states, we need to move forward. That's what I'm telling. Nothing. Delhi very cordial discussion yesterday हो गया. We are searching for the best candidates in Delhi. Our 3 seats, we will provide our best candidates. We are exploring all the possibilities of finding out the best candidates. Only for the that is for the Delhi. Not individually I don't. I told you, brother, individually I don't want to answer any seats. We are giving tickets on the basis of inability and that much. और इस वक्त लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 39 नाम है इसमें। अगली बैठक सीईसी की 11 तारीख को होगी और उसके बाद कुछ और नाम आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के 6 नाम हैं इसमें और इसमें जांजगीर चांपा से शिव कुमार डहरिया जो पिछली सरकार में मंत्री थे, कोरबा से ज्योत्सना महंत जो यहां से वर्तमान सांसद हैं, राजनांदगांव से भूपेश बघेल का नाम सामने आया है जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दुर्ग से राजेंद्र साहू का नाम है, रायपुर से विकास उपाध्याय और ये बहुत चौंकाने वाले नाम नहीं है। महासमुंद की बात करें तो पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू
को टिकट दिया गया है। इन्हीं नामों की चर्चा हो रही थी और रायपुर की अगर हम बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल के सामने अब लड़ाई होगी विकास उपाध्याय की। अगर हम जांजगीर चांपा, जहां पर कांग्रेस ने शिव कुमार डहरिया को टिकट दिया है, वहां से कमलेश जांगड़े उनके सामने होंगे बीजेपी की तरफ से। कोरबा की बात करें, जहां से ज्योत्सना महंत चुनाव लड़ेंगी, उनके सामने सरोज पांडे इस बार चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। तो दो महिलाओं के बीच यहां कड़ी टक्कर दिखेगी।